اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے جاتا ہے، جب بدکاری کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اپنے منہ کو کالا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح، اس کے سر کے اوپر چھت کی طرح چھا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی زنا کرنے کے بعد، اگر وہ آدمی بدکاری کی کاموں کا ارتکاب کر لینے کے بعد، اگر وہ آدمی اس چیز سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ دوبارہ کبھی زنا کے قریب نہ جانے کا عزم کر لیتا ہے، تو اس کا ایمان پھر اس کی دل کے اندر آ جاتا ہے۔ صحابیوں کی جماعت سنو، مجھے ایک ایسا منظر دکھایا گیا، مجھے ایک ایسا عذاب دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک تنور نما چولہا ہے، ایک تنور نما گڑھا ہے، اور اس گڑھے کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے، ایک تنور نما گڑھا ہے، اور وہ گڑھا اوپر سے جو ہے تنگ ہے اور اس کے نیچے سے کشادہ ہے، اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس تنور نما گڑھے کے اندر دیکھا، میں نے اس تنور نما گھڑے کے اندر دیکھا کہ کچھ انسان ہیں، کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد بھی ہیں جو بالکل برہنہ ہے، جس کو ننگا کر کے اسی تنور کے اندر ڈالا گیا ہے، اسی گھڑے کے اندر ڈالا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنی بدترین عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ آگ کی لپٹ میں اس کو جھونکا جا رہا ہے، تنور نما گھڑے کے اندر جو ہے بوٹیوں کی طرف بھونا جا رہا ہے، کباب کی طرف بھونا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان جواب دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں، یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جس کے پاس حلال بیویاں موجود ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں سے زنا کیا کرتے تھے، غیر عورتوں کے پاس جا کر کے جو ہے حرام عورتوں کے پاس جا کر کے راتیں گزارا کرتے تھے، زنا کاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو زنا کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جمعہ کے اندر میں نے زنا کاری کی جو سزا ہے دنیا کے اندر، اس کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زناکار انسان کے لیے، ایک زانی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا متعین کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم اور آپ زناکاری کی جو سزا قیامت کے دن ملنے والی ہے یا جہنم کے اندر ملنے والی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر زناکاری اور بدکاری کی جو سزا ہے، ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے یا کسی کے بارے میں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں انسان بدکار ہے، فلاں انسان زانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اس انسان سے رشتہ نہ کیا جائے، یعنی اس انسان کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ یہ ایک مومن کے اوپر، یہ ایک مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ سورہ نور کے اندر کچھ یوں کھینچتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زناکار آدمی سے نکاح کرنے کے لیے روک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اور زناکار مرد سے سوائے زناکار عورت کے اور کوئی نکاح نہیں کرتا ہے، او مشرکہ، اگر زناکار عورت نہ ملے تو ایک مشرکہ عورت سے کر دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے والزانیۃ لا ينکحها
इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और एक औरत जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगा लिया जाए, जिसके बारे में ये पता चल जाए कि फला औरत ज़िनाकार है, फला लड़की ज़ानी है, तो उस लड़की से भी निकाह न किया जाए इल्ला ये कि उसका निकाह किसी ज़िनाकार मर्द से कर दिया जाए, उसका निकाह किसी मुशरिक मर्द के साथ कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के तीसरे टुकड़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुर्मत का ऐलान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला एक ज़िनाकार मर्द से और एक ज़िनाकार औरत से निकाह को हराम कर रहा है एक मोमिन के ऊपर। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और एक मोमिन के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर, एक ईमान वाले आदमी के ऊपर ज़िनाकार आदमी से निकाह को हराम कर रहा है। व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, एक मोमिन के ऊपर ये हराम है कि वो किसी ज़िनाकार इंसान से शादी करे, एक ज़िनाकार मर्द से निकाह करे। ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया है। और कि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर और आजकल हमारे जो है गांव इलाके के अंदर ये वबा जो है पूरी जोर और शोर के साथ फैल रही है। जिसके पास दौलत है, जिसके पास माल है, आज समाज और मुआशरे की एक ये भी सच्चाई है कि जिसके पास दौलत है, जिसके पास माल है, ये सारी की सारी चीज़ें मालूम होने के बावजूद कि फला इंसान ज़िनाकार है, फला इंसान बदकार है, उसका ताल्लुक नाजायज़ ताल्लुक एक गैर मर्द या एक गैर औरत के साथ है, लेकिन उसके बावजूद उसकी दौलतों को देखने के बाद, उसकी दुनियावी ज़िंदगी की स्टेटस को देखने के बाद, ज़िंदगी की गुजारने के जो तरीके हैं और जो उसूल हैं, उन उसूलों को देखने के बाद एक आदमी जो है इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने के बजाय जो है उससे निकाह और उससे शादियाँ करने का हुक्म दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत से शादी करने को भी और निकाह करने को भी हराम कर दिया है। इसी की वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों एक ज़िनाकार इंसान से निकाह करने को हराम कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह को बयान कर रहे हैं कि जब एक ज़िनाकार आदमी, जब एक ज़ानी किसी गैर औरत के साथ, किसी नामहरम के साथ ज़िना करता है, किसी औरत के साथ ज़िनाकारी में जब मुलव्विस होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहुवा मुमिन, तो उस वक्त वो आदमी मोमिन नहीं होता है, उस वक्त वो आदमी ईमान वाला नहीं होता है। जब वो आदमी किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है, जब किसी औरत के साथ बदकारी के कामों को अंजाम देता है। मेरे अजीज साथियों, और एक दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जब एक आदमी किसी गैर औरत के साथ ज़िना करने के लिए जाता है, जब बदकारी करने के लिए जाता है, जब अपने मुंह को काला करने के लिए जाता है, तो उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है, उसका ईमान जो है उसके दिल से निकल जाता है और उसके सर के ऊपर साइबान की तरह, उसके सर के ऊपर छत की तरह छा जाता है। उसके सरों के ऊपर उसका ईमान जो है साइबान के मानिंदा हो जाता है। अगर वो आदमी ज़िना करने के बाद, अगर वो आदमी बदकारी के कामों का इर्तिकाब कर लेने के बाद उस चीज से तौबा कर लेता है और वो दोबारा कभी ज़िना के करीब न जाने का अज़्म कर लेता है, तो उसका ईमान फिर उसकी दिल के अंदर आ जाता है। उसका ईमान जो है फिर उसके दिल के अंदर आ जाता है जब एक आदमी ज़िना से तौबा कर लेता है। मेरे अजीज साथियों, इसी की वजाहत अल्लाह तबारक व तआला सूरे मोमिन के अंदर कुछ यूं कर रहा है, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों का तज़किरा कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान वाले बंदों का तज़किरा कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों का तज़किरा कर रहा है कि मेरे मोमिन बंदे ये है
میرے مومن بندے یہ ہیں، میرے مومن بندے فلاں انسان ہیں، جن میں سے ایک اس انسان کو بھی شامل کیا گیا ہے جو آدمی زنا سے بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ میرے محبوب بندے وہ ہیں، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں جو زنا کے قریب نہیں جاتے، جو زنا سے بچا رہتا ہے، جو آدمی زنا کے قریب نہیں جاتا ہے، جو آدمی زنا کاری کا ارتکاب بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے محبوب بندے وہ ہیں جو زنا کاری سے بچے رہتے ہیں، جو زنا کے قریب نہیں جاتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ تین دلیلیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس آدمی سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، ایک مومن اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں میں اس انسان کو شمار کیا ہے جو انسان زنا سے بچا رہتا ہے، جو آدمی زنا کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کر دی کہ کوئی آدمی جو ہے زناکار انسان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول جس کا نام مرثد ابن ابی مرثد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نبی میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو عورت زمانے جاہلیت میں مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات اسی عورت کے ساتھ تھا۔ اور مرثد ابن ابی مرثد نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، لیکن وہ زانی عورت ابھی تک جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے میرے نبی میں عناق سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نبی میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مرثد تم اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ عورت بدکار ہے، کیونکہ وہ عورت زناکار ہے اور ابھی تک اس نے جو ہے توبہ نہیں کیا ہے، ابھی تک اس عورت نے توبہ بھی نہیں کیا، نہ ہی اسلام کے دائرے میں شامل ہوا اور نہ ہی اس نے زناکاری کے کاموں کو چھوڑا ہے۔ اے مرثد اس لیے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اے مرثد اس لیے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عورت زانی ہے، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ زناکار ہے، وہ عورت جو ہے وہ بدکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کا یہ بھی حکم ہے کہ ایسے انسان سے نکاح اور شادی بھی نہ کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر زمانے میں اور ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو جن گناہوں سے اور جن بدکاریوں سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک گناہ زناکاری بھی ہے، ان میں سے ایک گناہ زناکاری بھی ہے۔ شیطان نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر دور اور ہر قوم والے کو اسی زنا سے انسانوں کو گمراہ اور انسانوں کو بدکار اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ زنا
ऐसी चीज को कहा जाता है कि जिसके पास हलाल ज़राए मौजूद होने के बावजूद, जिसके पास हलाल ज़राए मौजूद होने के बावजूद अपनी जिनसी ख्वाहिशात को गलत रास्ते से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को तकमील करना और अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करना, इसी का शुमार ज़िना में होता है और इसी चीज का नाम ज़िना है। अगर कोई आदमी किसी के पास हलाल ज़राए होने के बाद, हलाल बीवी होने के बावजूद भी, शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी जो है दूसरों से जो रास्ता नाजायज़ है, जो रास्ता हराम है, अगर ऐसे रास्ते से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता है और अपनी ख्वाहिशात नफ्स को तकमील और मुकम्मल करता है, तो यही चीज़ ज़िना है और इसी का शुमार जो है वो ज़िना में होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी का नक्शा कुरान मजीद के अंदर कुछ यूँ खींचा, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। ऐ लोगों, तुम ज़िना के करीब न जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को खबरदार कर रहा है, इंसानों को ज़िना से रुकने का हुक्म दे रहा है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। ऐ लोगों, तुम ज़िना के करीब न जाओ। इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ज़िना से मना तो कर रहा है, लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। तुम ज़िना तो छोड़ो, ज़िना के करीब भी न जाओ। जो चीज़ें तुम्हें ज़िना की तरफ लेकर के जाती है, जो चीज़ें तुम्हें ज़िना की तरफ उभारती है, बदकारी पर उभारती है, तुम्हें उस चीज के करीब भी नहीं जानी चाहिए। अगर तुम उस चीज के करीब जाओगे तो मुमकिन है कि तुम ज़िना का इर्तिकाब करोगे। और मेरे अजीज साथियों, अगर ये कह दिया जाए कि हम और आप ज़िनाकारी के कल्चर में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आज हम और आप इस दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर ज़िनाकारी के कल्चर में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ज़िना की कल्चर में क्यों कट रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर यूँ इरशाद फरमाया कि तुम ज़िना के करीब न जाओ। आज जो है 18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो है उनके हाथों में मोबाइलें दे दी गई है, उनके हाथों में जो है लैपटॉप थमा दिया गया है, उनके हाथों के अंदर जो है मोबाइलें दे दी गई है। मेरे अजीज साथियों, ज़िना का रास्ता अगर कोई चीज खोलता है तो यही मोबाइल है। ज़िना का रास्ता अगर कोई चीज आज हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ावा दे रहा है तो यही चीज मोबाइल है। मेरे अजीज साथियों, इसी मोबाइलों के अंदर एक इंसान ऐसे चीजों को अपनी मोबाइलों के अंदर देखता है और उन चीजों को देखने के बाद उसकी जिनसी ख्वाहिशात जो है उफान मारना शुरू होता है। उसके बाद एक इंसान जो है गलत रास्ते की तरफ जाता है और ज़िना का इर्तिकाब करता है। आज ये कल्चर जो है, आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी आम हो चुकी है। ये कल्चर आज आम हो चुकी है। इस तरह के वीडियोस को आज जो है प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह के वीडियोस बनाने वाले इंसानों को हीरो माना जाता है। इस तरह के जो है लहव और लग़व वीडियो और सॉन्ग्स बनाने वाले इंसानों को जो है बड़े से बड़े सेलिब्रिटी में शुमार किया जाता है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि आज मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम है। यही वजह है कि आज मुआशरे के अंदर बदकारी आम है। अगर हम ज़िना के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेरे अजीज साथियों, ये चोर दरवाजे जो है हमें और आपको इस चीज को बंद करना होगा। हमें और आपको अपनी बच्चों को मोबाइलों से दूर रखनी होगी। हम तो ये तसव्वुर करते हैं, हम तो ये सोचा करते हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चे जो है आला तालीम हासिल करेंगे, मोबाइलों से तालीम हासिल करने का काम करेंगे। आपकी गैर मौजूदगी में एक इंसान न जाने किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लेता है। यही चोर दरवाजे हैं जो हमारी बच्चों को और मुस्लिम मुआशरे की बच्चियों को ज़िना की तरफ उभारता है। और इसी चीज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया कि तुम उस चीज के करीब भी न जाओ, और तुम जब उस चीज के करीब नहीं जाओगे तो मुमकिन है कि तुम ज़िना से बच जाओगे, मुमकिन है कि तुम बदकारी से बच जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर एक इंसान को
जिना से बचने का हुक्म दिया। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर जिना को हराम कर दिया, हमने तुम्हारे ऊपर बदकारी के कामों को हराम कर दिया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारे के सारे वसाइल और उन सारे के सारे जराए से भी रुकने का हुक्म दे दिया कि अगर तुम इन चीजों का इर्तिकाब करोगे तो मुमकिन है कि तुम जिना के करीब चले जाओगे। ज़िनाकारी की जो हवलनाकी है, जिसका तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की ज़ख़ीरा किताब में किया कि एक इंसान अगर ज़िना का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए क्या सज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए क्या जो है सज़ाएं मुसल्लत की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, हजरत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हुआ करता था, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज को अदा कर लेने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की तरफ मुखातिब हो जाया करते थे और सहाबाए किराम से कहते थे कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, आज तुम में से किसने ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की ख्वाबों को सुनने के बाद उसकी ताबीर को बताया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर को वाज़ेह किया करते थे। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, सहाबाए किराम से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत बताओ, आज किसने ख्वाब देखा है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम में से किसी ने भी ख्वाब नहीं देखा है, आज हम में से किसी ने भी ख्वाब नहीं देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, आज मैंने ख्वाब देखा है, आज मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब दिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरे पास दो इंसान आते हैं, इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। दो आदमी आते हैं और मुझे लेकर के जो है अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ लेकर के चले जाते हैं, आसमान दुनिया की तरफ लेकर के चले जाते हैं, अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ लेकर के चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया गया, मुझे एक ऐसा अज़ाब दिखाया गया। मैंने देखा कि एक तन्नूर नुमा चूल्हा है, एक तन्नूर नुमा गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर आग भड़क रही है। मैंने अपने नजरों से देखा कि एक गड्ढा है, एक तन्नूर नुमा गड्ढा है और वो गड्ढा ऊपर से जो है तंग है और उसके नीचे से कुशादा है और उसके अंदर आग भड़क रही है, उसके अंदर जो है आग को जलाई जा रही है और आग को भड़काई जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उस तन्नूर नुमा गड्ढे के अंदर देखा, मैंने उस तन्नूर नुमा घड़े के अंदर देखा कि कुछ इंसान है, कुछ औरतें हैं और कुछ मर्द भी हैं जो बिल्कुल बरहना है, जिसको नंगा करके उसी तन्नूर के अंदर डाला गया है, उसी घड़े के अंदर डाला गया है। आग जब जो है अपनी लपट मारना शुरू करता है तो वो आदमी जलते जलते उस तन्नूर नुमा जो है उसका जो है ऊपरी हिस्सा है जो कुशा जो तंग है उससे जो है उसकी आग की लपट जब बाहर आती है तो कुछ आदमी उससे बाहर आ जा रहा है, कुछ औरतें और कुछ मर्द जो है उस आग से बाहर आ जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि उस आग से जो है निकल जाए, लेकिन जब उसकी तपिश कम होती है तो फिर वो आदमी जो है उसी घड़े के अंदर चला जाता है, उसी तन्नूर नुमा जो है घड़े के अंदर चला जाता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन इंसान है, ये कौन लोग है जिसको इतनी बदतरीन अजाब में मुब्तला किया गया है, आग की लपट में इसको झोंका जा रहा है, तन्नूर नुमा घड़ी के अंदर जो है बूटियों की तरफ भूना जा रहा है, कबाब की तरफ भूना जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान जवाब देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं, ये तुम्हारी उम्मत के वो लोग हैं, ये आपके उम्मत के वो लोग हैं जिसके पास हलाल
बीवियां मौजूद होने के बावजूद भी गैर औरतों से ज़िना किया करते थे, गैर औरतों के पास जाकर के जो है हराम औरतों के पास जाकर के रातें गुजारा करते थे, ज़िनाकारी का इर्तिकाब किया करते थे। ये उम्मत मोहम्मदिया के वो लोग हैं जो ज़िना का इर्तिकाब किया करते थे, जो शादीशुदा होने के बावजूद या शादी की दहलीज में पहुंच जाने के बावजूद शादी नहीं किया करते थे और शादी न करने के बाद ज़िनाकारी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ा करते थे और ज़िना जैसे गुनाह का इर्तिकाब किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो इतना सख्त अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला एक ज़िनाकार इंसान को दे रहा है, एक बदकार इंसान को दे रहा है, एक ऐसे आदमी को दे रहा है जो आदमी अपनी हलाल बीवियों को छोड़ करके जो है अपनी जिंसी ख्वाहिशात को गैर औरत के साथ जो है पूरा करता है। मेरे अजीज साथियों, अगर कोई आदमी अपनी हलाल बीवियों को जो है छोड़ करके किसी गैर औरत से अगर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने नजरों से देखा कि इन सारे के सारे इंसानों को जो ज़िना का इर्तिकाब किया करते हैं दुनिया के अंदर, उन लोगों को बरहना नंगा जो है उस तन्नूर नुमा गड्ढे के अंदर डाल दिया गया है और उसके जो है गड्ढे के अंदर डालने के बाद आग को भड़काई जाती है और उस आग के लपट को भड़काई जाती है, जिससे एक इंसान जो है जलते हुए उस तन्नूर से बाहर आता है और जब उसकी लपट जो है कम हो जाती है, उसकी तपिश कम हो जाती है, तो फिर वो आदमी उसी तन्नूर के अंदर चला जाता है, उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये सख्त तरीन अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए मुसल्लत किया है जो दुनिया के अंदर ज़िना का इर्तिकाब किया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर वाज़ेह करते हैं, सलासतुन युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों से कभी बात नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों की तरफ अपनी रहमत की नजर नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तीन लोगों को गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। तीन तरह के लोगों को जो है अपनी नजरों से देखना गवारा भी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनमें से पहला इंसान है शैखुन ज़ानिन, एक ऐसा इंसान जो बुढ़ापे की उम्र में भी ज़िना करता है। एक आदमी अगर ज़िना की लत में फंस जाता है, अगर एक आदमी को ज़िना की नशा हो जाता है, ज़िना का लत लग जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि इसी इंसान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अपनी नजर रहमत नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को गुनाहों से भी पाक नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से बात भी नहीं करेगा। जो इंसान अपनी जवानी की उम्र में ज़िनाकारी करता है, जो आदमी अपनी जो अधेड़ की उम्र में ज़िनाकारी करता है, जो आदमी बुढ़ापे की उम्र में भी ज़िनाकारी करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे इंसान से अल्लाह तबारक व तआला बात भी नहीं करेगा, ना ही उसको गुनाहों से पाक भी करेगा। ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला बात भी नहीं करेगा, उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं करेगा और उस आदमी को गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये ज़िनाकारी की हवलनाकी है और ये ज़िनाकारी की हवलनाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ज़िनाकारी की हवलनाकी को बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुआशरे के अंदर, जब समाज के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाती है, जब मुआशरे के अंदर बदकारी आम हो जाती है, जब गुनाहों का इर्तिकाब आम हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस मुआशरे के ऊपर अज़ाब को नाज़िल करता है और अज़ाब की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों को मुसल्लत कर देता है। अज़ाब की शक्ल में मुआशरे के लोगों के ऊपर जो है बीमारियों को मुसल्लत कर देता है। मेरे अजीज साथियों, आज हम इस चीज का मुशाहिदा भी कर रहे हैं, आज हम दुनिया के अंदर इस चीज का मुशाहिदा भी कर रहे हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर हट्टे कट्टे नौजवान मौजूद है, ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद है जो बिल्कुल तवाना है, जो बिल्कुल ताकतवर है, लेकिन उससे सवाल कर लिया जाए तो वो आपको बताएगा कि मेरे अंदर फला बीमारी है, मेरे अंदर फला मर्ज है। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसे
अधेड़ की उम्र वाले इंसान आपको मिलेंगे इसी समाज और इसी मुआशरे के अंदर कि वो कहेगा कि मुझे एड्स की बीमारी हो गई है। इस तरह की बीमारियां अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां ऐसे समाज के ऊपर मुसल्लत की जाएगी, ऐसे ऐसी बीमारियां समाज और मुआशरे के ऊपर मुसल्लत की जाएगी जिन बीमारियों को आज से पहले के जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं वो जानते तक भी नहीं होंगे, उसका नाम तक भी नहीं सुना होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां जो है मुआशरे के ऊपर आम हो जाएगी और मुआशरे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब के तौर पर मुसल्लत कर देगा। अज़ाब के तौर पर ऐसी ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर देगा जिसका इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह तबारक व तआला उस समाज और मुआशरे के ऊपर मुसल्लत कर देगा जिन बीमारियों का नाम आज से पहले जो हमारे दादा हमारे परदादा हुआ करते थे उन लोगों ने उन बीमारियों का नाम तक भी नहीं सुना होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां समाज और मुआशरे के ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी। किस वक्त? जिस वक्त समाज और मुआशरे के ऊपर जो है ज़िनाकारी का फितना छा जाएगा, जिस वक्त मुआशरे के अंदर ज़िना का फितना छा जाएगा, जिस वक्त रिश्ते का लिहाज बाकी नहीं रह जाएगा। समाज के अंदर कौन सास, कौन बहू, कौन बीवी और कौन बहन और कौन चाची, जब इन रिश्तों का लिहाज समाज के अंदर नहीं रह जाएगा, मुआशरे के अंदर नहीं रह जाएगा, जो भी इंसान जिस वक्त चाहेगा अपने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने जिनसी तस्कीन को मुकम्मल करने के लिए जब ज़िना का इर्तिकाब करेगा उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की बीमारियों को मुसल्लत करेगा समाज के ऊपर और मुआशरे के ऊपर। मेरे अजीज साथियों, और ये बीमारी उसी वक्त ख़त्म होगी जब एक आदमी इस तरह के तमाम गुनाहों से तौबा करने लगेगा और इस तरह के गुनाहों से बचना शुरू कर देगा। मेरे अजीज साथियों, एक छोटी सी पॉइंट जो है मैं बयान करके अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आज अगर मुआशरे के अंदर और समाज के ऊपर अगर ये सारी की सारी वबाएँ जो है बदकारी की, ज़िनाकारी की, हरामकारी की, ये सारी की सारी वबाएँ जो आज हमारे समाज के अंदर जन्म ले रही है और अपनी जड़ मजबूत कर रही है, आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है? क्यों एक आदमी अपने जो है रिश्ते का लिहाज नहीं करता है बदकारी के वक्त? क्यों एक आदमी जो है अपने रिश्ते को भुला देता है बदकारी के वक्त और ज़िनाकारी के वक्त? मेरे अजीज साथियों, इसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर जो है ज़िना के चोर दरवाजे को बंद नहीं किया जाता है। जिनमें से पहली चीज़ मैंने आप लोगों के सामने बयान किया कि बच्चों के हाथों में मोबाइल का देना, ये सबसे बड़ा फितना है आज हमारे समाज के लिए, हमारे मुआशरे के लिए। मोबाइल का दे देना ये सबसे चोर दरवाजा है, सबसे बड़ा दरवाजा है ज़िना के रास्ते को हमवार करना और ज़िना के रास्ते को खोलना। और दूसरी चीज़ है हमारे बच्चे जो है जवानी के दहलीज पर कदम रख देता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर वाले जो है उसकी शादियां करने के बारे में नहीं सोचता है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज और मुआशरे की एक नासूर है जिसकी वजह से आज ज़िनाकारी आम है, बदकारी आम है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम वक्त पर अपने बच्चियों की और अपने बेटों की शादियां नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे, तो मेरे अजीज साथियों हम ज़िना के चोर दरवाजे को बंद नहीं कर सकते, हम ज़िना को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि एक इंसान को इस दुनिया के अंदर तीन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और सबसे पहली चीज है खाना, और दूसरी चीज है लिबास, और तीसरी चीज है नफ्स की ख्वाहिशात और जो है नफ्स की जो है तकमील और ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करना। ये तीन चीजें एक इंसान की जिंदगी के अंदर जरूरी है। अगर हम अपने बच्चियों की शादी सही वक्त पे नहीं करेंगे तो मेरे अजीज साथियों हम अपने मुआशरे को ज़िना से नहीं बचा सकते, हम अपने मुआशरे को ज़िना से नहीं रोक सकते। मेरे अजीज साथियों, हमारे मुआशरे के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक फितना भी है कि हमें और आपको इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और हमें और आपको ज़िना के चोर दरवाजे को बंद करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अगर हम और आप इस चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर मुशाहिदा करेंगे, तो मेरे अजीज साथियों शायद कि हम अपने मुआशरे से ज़िना को ख़त्म कर सकते हैं। ज़िनाकारी का और
एक बड़ा वजह ये भी हो सकता है, और आज के दौर में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये चीज भी ज़िना के रास्ते को हमवार करता है। अगर किसी आदमी के पास हराम तरीके से रिस्क आने लगता है तो मेरे अजीज साथियों, उस रिस्क का खपत भी हराम तरीके में ही होता है। अगर एक आदमी जो है नाजायज तरीके से दौलत को हासिल करता है, उसके बाद जो है अगर वो आदमी उसको जो है नाजायज तरीके पर खर्च न करे, ये हो ही नहीं सकता है। मेरे अजीज साथियों, कहीं ना कहीं ये भी एक जराए हो सकता है मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी को बढ़ावा देना। दूसरी चीज जो है शराब भी हो सकता है, शराब नोशी भी हो सकता है कि एक आदमी शराब के नशे में धुत होकर के ज़िना की तरफ जाता है, ज़िना का इर्तिकाब करता है। तो मेरे अजीज साथियों, मैंने ये चंद नुक्ते आप लोगों के सामने वजाहत की। इंशाअल्लाह अगर फिर मौका मिला तो इसी जो है मौजू के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इससे कबल मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम जो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।